Julie, my dear students, my name is Tanzin Angmo and I'm a chemistry lecturer. Today I'm going to discuss electrochemistry chapter. And let us start with our chapter, that is electrochemistry. तो हम पहले ये समझते हैं कि electrochemistry होता क्या है. Alright, so electrochemistry, the word itself consists of two words, that is electro and chemistry. Okay, तो electro मतलब क्या है बच्चों? Electro means electricity. Electricity and chemistry means chemical reaction or any chemical compound. So let us define what electrochemistry is. So electrochemistry can be defined as electrochemistry is a branch of science that deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. Electrical energy and chemical energy. So on the basis of this two energy, there are two types of cell that we are going to discuss, and that two type of cells are electrochemical cell and electrolytic cell. So two types of cells we are going to discuss, that is first electrochemical cell, and the second type of cell is electrolytic cell. Electrolytic cell. Okay, so we are going to discuss these two types of cells in details. First we'll take electrochemical cell. Okay, so we'll study these two types of cell in detail. And the first type of cell is electrochemical cell and the second type of cell is electrolytic cell. So in case of electrochemical cell, there is a conversion of chemical energy to the electrical energy, and in case of electrolytic cell, there is a conversion of electrical energy to the chemical energy. So first we'll take electrochemical cell. First is electrochemical cell. So this cell is also known as galvanic cell, and this cell is also known as voltaic cell. So let us define what electrochemical cell is. The very basic definition of electrochemical cell is there is a conversion of chemical energy to the electrical energy. So in this cell, electricity is produced. Electricity is produced due to spontaneous chemical reaction. Okay, so in this electrochemical cell, there is a conversion of chemical energy to the electrical energy. That means electricity is produced due to spontaneous chemical reaction. अब spontaneous means जो अपने आप होता हो, without any external energy, जो reaction अपने आप होता हो, that is called spontaneous. So there's a spontaneous chemical reaction because of which electricity is produced. Okay, and in this cell, oxidation and reduction reaction takes place in a separate container. Okay, so there will be a redox reaction. Redox reaction मतलब जिसमें oxidation and reduction हो. So that oxidation reduction reaction will take place in a separate container. So next we'll discuss the construction or working of a electrochemical cell. Okay, so we'll discuss one of the example of electrochemical cell, and that is the Daniell cell. So Daniell cell is an example of a electrochemical cell. So example of an electrochemical cell is a Daniell
cell. So we'll see what is the construction, what is the working inside this cell. Okay, first we'll discuss working of Daniell cell. So we'll take two separate containers. And in this container क्या करती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं फिल कर रही हूँ. इसमें मैं ले रही हूँ 1 मोलर जिंक सल्फेट. एंड इस कंटेनर में मैं ले रही हूँ 1 मोलर copper sulfate. So zinc sulfate and copper sulfates are electrolytes, and in this electrolytes I'll dip electrodes, metal rod. So in this electrolytes I'm dipping zinc electrode, I'm taking zinc metal as the electrode, and in this I'm taking copper as an electrode. Okay, so I'm connecting this two rod with a wire, conducting wire. And I'm connecting this with a emitter which will detect the flow of current inside this cell. Okay, so emitter will detect the current inside the cell. Okay, so what happens is इसमें क्या हो रहा है कि जब भी जिंक रोड एंड कॉपर रोड को मैं कनेक्ट करती हूँ इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तब क्या होता है इसमें रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू दी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. तो जैसे ही मैंने जिंक और कॉपर को मैंने कनेक्ट किया तब क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन होने लगा. तो सो रिएक्शन इज, तो हमने जब ऑब्जर्व किया तो क्या हमें ऑब्जर्व क्या हुआ कि जिंक जो है, इसमें नीचे लिख देती हूँ, जिंक जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू दी Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो जिंक रोड पे जो रिएक्शन ऑब्जर्व हुआ है वो ये हो रहा था, दैट इज जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू दी Zn2 पॉजिटिव एंड लूजिंग 2 electron. यानी कि दिस इज अ जिंक रोड एंड दिस इज कन्वर्टिंग टू दिस डिसॉल्विंग इनटू दी Zn2 positive form by losing 2 electron, and electrons are deposited to the electrode metal rod. And कॉपर पे क्या हो रहा था, कॉपर इस कॉपर रोड पे रिएक्शन हो रहा था. जो भी Cu, इसमें आयंस जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो जो कॉपर का आयन था वो कहाँ जा रहे थे, मेटल की रोड पे डिपोजिट हो रहे थे. दैट इज इसमें जो रिएक्शन हो रहा था Cu2 positive is gaining 2 electron and is getting converted to the copper solid. ओके, तो इसमें द केमिस्ट्री टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, जब मेटल, जिंक मेटल जो है वो कन्वर्ट हो रहा था, डिसॉल्व हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव इन द सोल्यूशन, एंड इन केस ऑफ राइट हाफ सेल इसमें क्या हो रहा था, कॉपर जो आयंस थे वो डिपॉजिट हो रहे थे मेटल रोड्स पे एंड गेटिंग रिड्यूस. यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे एंड इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे. यानी कि जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स हम क्या कहते हैं इसको, दिस इज ऑक्सीडेशन. यानी कि जिंक जो है वो क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था. एंड कॉपर के केस में क्या हो रहा था, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे, दैट्स वाई कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस. यानी कि इसमें क्या हो रहा था, दिस इज reduction. Okay, so losing of electron is called oxidation and gaining of electron is called reduction. So this is an example of a redox reaction where oxidation and reduction are taking simultaneously, are happening simultaneously. ऑलराइट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा कि जिंक जो है ऑक्सीडाइज होके Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में सोल्यूशन में जा रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जा रहे थे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे थे मेटल रोड पे, इलेक्ट्रोड्स पे, तो इसकी वजह से ये जो रोड है दिस इज नेगेटिवली चार्ज.
दिस रूट इज नेगेटिवली चार्ज. इन टर्न इस पे क्या हो रहा था, दिस रूट इज पॉजिटिवली चार्ज. ओके, सो इस इलेक्ट्रोड पे जिस पे नेगेटिवली चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एनोड. दिस इज कॉल्ड एनोड. एंड जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड. ऑलराइट, सो अब यहां से हम ये देख सकते हैं कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू दी कॉपर इलेक्ट्रोड. या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू दी कैथोड. ओके, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर, या हम एनोड टू दी कैथोड भी कह सकते हैं. दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस इलेक्ट्रॉन को कॉपर जो आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट थे वो मेटल रोड पे जाके वो क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे बाय दिस रिएक्शन. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, सो इससे हम ये अभी ये हमें पता चल गया कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, सो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच इलेक्ट्रोड टू विच इलेक्ट्रोड. तो इसमें ये आंसर करेंगे आप लोग, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इज फ्लो फ्रॉम एनोड टू द कैथोड. एंड दैट्स वाई करंट का फ्लो जो है वो होगा कैथोड टू द एनोड, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो जो करंट होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट का जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम कैथोड टू दी एनोड. सो यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज opposite to the direction of current. ये आप नोट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ओके, सो हमने अभी ये देखा है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो लेफ्ट साइड पे है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एंड राइट साइड पे है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. यानी कि ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, तो इसमें हम एक ट्रिक याद रखते हैं, इसमें लर्निंग ट्रिक कहते हैं, जिससे हम ये याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या होता है. तो जो ट्रिक होता है वो आप याद रखेंगे. इस साइड लिख देती हूँ, लोन, LOAN, लोन. यानी कि लोन मतलब L लेफ्ट हैंड साइड, O ऑक्सीडेशन, A यानी कि एनोड, N नेगेटिव चार्ज. तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, वो राइट हाफ सेल के लिए यूज होगा. ऑलराइट, तो आप ये याद रखेंगे इसको. दिस इज अ लर्निंग ट्रिक. ओके, तो अभी हमने ये देखा है कि जो मेटल जिंक जो रोड है वो ऑक्सीडाइज होके इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में सोल्यूशन में जा रहा है. वैसे ही Cu2 पॉजिटिव इसमें कॉपर आयन जो है वो मेटल रोड पे जाके डिपॉजिट होके रिड्यूस हो रहे थे. यानी कि विद टाइम क्या होगा, ये मेटल जिंक जो मेटल रोड होगा वो विद टाइम यहाँ पे थिननेस होगा, इसमें जो थिकनेस होगा वो कम होगा. ऑलराइट, एंड इन केस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इसमें क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से जाके कॉपर आयन जो है वो रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहे थे. तो इसका जो थिकनेस होगा वो विद टाइम क्या होगा, बढ़ेगा. ऑलराइट, तो इसमें अब विद टाइम क्या होगा, इसमें सोल्यूशन इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव जो डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में आ रहे थे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, इंक्रीज होगा. राइट, क्योंकि हमने ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था दैट वी हैव टेकन एज 1 मोलर ZnSO4, यानी कि 1 मोलर Zn2 पॉजिटिव एंड 1 मोलर SO4 2 नेगेटिव. बट जो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव जो मेटल रोड से डिसॉल्व होके आ रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज आ रहा था. वैसे ही इस केस में लेफ्ट राइट हाफ सेल में क्या हो रहा था,
इसमें जो कॉपर आयन है वो मेटल रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा था, इसकी वजह से जो इसका काउंटर आयन है दैट इज सल्फेट आयन, SO4 नेगेटिव आयन जो है वो विद टाइम इसमें इंक्रीज हो रहा था। तो इस हाफ सेल में क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज हो रहा था। तो इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज अ हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें कुछ हिंड्रेंस आ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, सॉल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग बट सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास, इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास है। इसमें हम फिल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को हम फिल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज KCl हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, वैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इसमें फिल करते हैं इन अगर अगर पाउडर। और अगर अगर पाउडर इज अ वाइट पाउडर जो कि हम सेमी सॉलिड स्टेट में इसमें फिलअप करते हैं। ऑलराइट, तो हम लेते हैं इसमें फॉर एग्जांपल लेट अस टेक KCl इलेक्ट्रोलाइट्स इन दिस सॉल्ट ब्रिज। तो हम KCl को इसमें फिल करते हैं, KCl। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट से जो डिसोसिएट होते हैं इनके केटाइंस एंड एनाइंस में, तो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। तो जो इस सॉल्ट ब्रिज है वो हम किस में यूज करते हैं, इस हाफ सेल के दोनों में फिक्स करते हैं, यानी कि वी यूज सॉल्ट ब्रिज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें हम KCl को फिल करेंगे, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, सो इसमें क्या हो रहा था, इसमें पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो रहा था। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसमें Cl नेगेटिव है वो क्या करते हैं, इसमें फ्लो करते हैं। ऑलराइट, तो विद टाइम इसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसकी वजह से फिर देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली राइट हाफ सेल में क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज हो रहा था। तो दैट्स वाई इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव जो आयन है वो यहाँ पे फ्लो करते हैं, K पॉजिटिव आयन जो इसमें फ्लो करके फिर नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होता है, एंड दैट्स वाई इसमें जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यू रहता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो हमने अभी देखा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज है वो कैसे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू रखते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Okay, so the first function of salt bridge is it maintains the electrical neutrality. It maintains the electrical neutrality. तो अभी हमने देखा कि पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सेकंड इसका फंक्शन है बच्चों सॉल्ट ब्रिज का, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। Okay, so these are the function of salt bridge. Next हम पढ़ते हैं representation of cell. Representation of cell. एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलराइट, तो अभी हमने ये देखा था कि इन केस ऑफ डेनियल सेल हमने क्या देखा, एग्जाम्पल डेनियल सेल को ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ। एग्जाम्पल डेनियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो पहले हमने क्या लिया था, जो रोड लिया था, जिंक रोड लिया था, वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, Zn2 पॉजिटिव में, राइट, और द कंसेंट्रेशन वी हैव टेकन वाज 1 मोलर। ओके, एंड वर्टिकल, 2 वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। ये जो 2 वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। उसके बाद तो राइट हाफ सेल में क्या हो रहे थे, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर सॉलिड में, यानी कि Cu सॉलिड गेटिंग कन्वर्ट टू दी Cu2 पॉजिटिव, द कंसेंट्रेशन वाज अगेन 1 मोलर। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो मेटल जो है कन्वर्ट हो रहे थे, जिंक जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ कन्वर्ट हो रहे थे, 0 to
+2, यानी कि इसमें क्या हो रहे थे, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन, एंड वी हैव यूज सॉल्ट ब्रिज, एंड सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं 2 वर्टिकल लाइन से, एंड राइट हाफ सेल में क्या हो रहे थे, कॉपर सॉलिड जो है, सॉरी इसको ऐसे लिखना है, सॉरी, Cu2 पॉजिटिव जो है कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर सॉलिड में, इसका जो है 1 मोलर कंसेंट्रेशन है आयंस का जो है, और कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर सॉलिड में। तो +2 से ऑक्सीडेशन जो है 0 है, सो देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to 0, एंड दिस मीन्स व्हाट, रिडक्शन, रिडक्शन। So this is how we represent electrochemical cell. Okay. Next हम पढ़ेंगे cell reaction. तो cell reaction को हम कैसे लिखते हैं, cell reaction. तो इसमें भी हम डेनियल सेल का ही एग्जाम्पल लेंगे. ओके, सो सेल रिएक्शन क्या हो रहा था, अभी हमने देखा कि 2 रोड दैट इज एनोड एंड कैथोड था. तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था, एनोड पे जो हो रहा था जिंक जो है कन्वर्ट हो रहे थे Zn2 पॉजिटिव में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. तो जिंक पे जो रिएक्शन होगा, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू दी Zn2 पॉजिटिव एंड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द रिएक्शन एट एनोड. एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था, कैथोड यानी कि राइट हाफ सेल, कैथोड पे क्या हो रहा था, कॉपर आयन जो है वो डिपॉजिट हो रहे थे इलेक्ट्रोड पे. सो Cu2 पॉजिटिव इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग कन्वर्टेड टू दी कॉपर सॉलिड. Okay, so this is the reaction at anode and cathode. So now what is the overall reaction of a cell, यानी कि, or we can say the net cell reaction, net cell reaction. So in this case क्या हो रहा है कि right hand side और left hand side इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहे थे, वहीं इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे. तो in this case this 2 electron gets cancel out, and the overall cell reaction we have is Zn solid plus Cu2 positive, and we're getting what, Zn2 positive plus Cu solid. Okay, so the overall reaction is zinc is getting converted to the Zn2 positive, and copper is getting converted to the Cu2 positive to the Cu. मतलब there is a change in oxidation state. In case of zinc, the oxidation state is getting converted from 0 to the +2, and this means what? This is oxidation. This is oxidation. And in case of copper, there is a conversion of +2 to 0 oxidation state, and this is nothing but reduction. So this is the net cell reaction of Daniell cell in case of electrochemical cell. So in net cell reaction में हमें क्या नोटिस क्या करना, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी विजिबल, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट होना चाहिए. नेट सेल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होना चाहिए. फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपना घर पे ट्राई करिए कि इस पे एनोड का क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा. सो nickel 2 positive, salt bridge, and then silver solid. So इस पे आप ये लिखेंगे, इन इस सेल का एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, वैसे ही कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, एंड ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन क्या होगा. इसमें आप इलेक्ट्रॉन को पहले बराबर करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है तो पहले आप इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे सो दैट इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल आउट. ओके, सो इसी पे हम कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को. तो नेक्स्ट टॉपिक हम